class, today we will start a new book, Advanced Calculus 2. So the first chapter is sequence. So let's start this topic sequence with the definition. What is a sequence? A sequence is a function whose domain is natural number and range set is x be any set. So what is the sequence? The sequence is the function whose domain is natural number and range set is x. So इधर हमारे पास कुछ नंबर रहेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7. जब भी हम ये नेचुरल नंबर्स इधर पुट करेंगे तो हमारा आंसर इधर कुछ ना कुछ आता जाएगा, और वो कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स भी है, एनी सेट. सो दिस इज कॉल्ड एज द सीक्वेंस. इफ द सेट एक्स इज इक्वल टू आर, इफ सेट एक्स इज इक्वल टू आर, दैट इज रियल नंबर्स, then the sequence is called real sequence. This is the definition. We usually denoted the sequence by an, where n belonging to the natural numbers. इसकी domain है n belonging to natural number. मतलब सीक्वेंस के अंदर कौन से नंबर आएंगे? a1 a2 a3 a4 so on up to infinity. बट सीक्वेंस सिंपल सा मतलब है ना, सीक्वेंस मतलब कोई भी टर्म जिसको हमने वेल अरेंज्ड मैनर में लिखा हो उसको बोलते हैं सीक्वेंस. और वेल अरेंज्ड मैनर कौन सा है? जहाँ से नंबर हमारे नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. नाउ आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, लेट्स वन मोर डेफिनेशन इज द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस. The range of sequence. The set of all distinct elements of sequence is called the range of sequence. यही है ना सीक्वेंस, ए एन सीक्वेंस. उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? a1 a2 a3 a4. जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या आएंगे? उसकी रेंज होगी. फॉर एग्जांपल, लेट an be a sequence which is equals to -1 power n. So what is the sequence? Sequence is a1 a2 so on up to infinity. a1 a2 a3 so on up to infinity. That is a1 का मतलब -1, a2 का मतलब -1 की पावर 2 1. Let's do this on the top of the page. What is the range? What is the example of the range of the sequence? The example of the range of the sequence is, example, let an be the sequence which is equals to -1 power n belonging to the natural numbers. मैंने सीक्वेंस बनानी स्टार्ट की. सीक्वेंस क्या बनेगी? a1 a2 a3 a4 so on up to this. What is the value of a1? -1 power 1. What is the value of a2? -1 power 2 -1 power 3 -1 power 4 so on up to infinity. -1 power 1 is 1, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1. ऐसे सीरीज चलती है. कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर? 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट. सो रेंज ऑफ an is equals to -1 and constant 1. There are only 2 distinct elements in this sequence, therefore the range is known as the range of the an is -1 and 1. Now after this there is one more definition. The definition is constant sequence. And one more thing, this example an is equal to -1 power n is a very important example and very useful in the further topics. The next definition is constant sequence. Definition खुद अपने नाम में क्लियर कर रही है. What is a constant sequence? A sequence, if a sequence an is such that
an is equal to some c for all n belongs to natural number, then sequence is called constant sequence. Suppose example, ये सेम एग्जांपल लेते हो करोगे, an is equals to -1 पावर मैंने ले लिया 2 है, सीक्वेंस क्या बनेगी a1 a2 a3 a4 so on up to this. What is the value of a1? -1 power 2. What is the value of a2? -1 power 2 -1 power 4 6 -1 power 8 so on up to this. 1 1 1 1 1 हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1. Therefore this sequence is a constant sequence. After this there is one more definition. Definitions are very 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 important for this book. जब तक आप definitions नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन याद नहीं होंगे. क्वेश्चन करने के लिए you have to go through the all the definitions. और अच्छे से definition करनी है. जरूरी नहीं है कि definition अगर हमारे पेपर में नहीं आती तो हमने पढ़नी नहीं है. जी नहीं, definition पढ़नी पड़ेगी तभी आगे जाके काम आएगा. हर थ्योरम में this book is basically totally based on the theorems. हर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें उनकी definitions आनी चाहिए. So the next definition is bounds of a sequence. सीक्वेंस की कुछ बाउंड्स होती हैं. सीक्वेंस किस तरह की होती है? एक सीक्वेंस रहेगी हमारे पास बाउंडेड बिलो, फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी बाउंडेड अबव, फिर एक सीक्वेंस आएगी बाउंडेड सीक्वेंस, उसके बाद एक सीक्वेंस आएगी अनबाउंडेड सीक्वेंस. इन डेफिनेशन का मतलब हिंदी में समझना ज़्यादा जरूरी है. बाउंडेड बिलो, बाउंड का मतलब क्या है? रोकना. जैसे आपके घर वालों ने आपको एक बाउंड लगाई हुई कि घर से कॉलेज तक जाना, कॉलेज के आगे नहीं जाना, ठीक है ना. कोई कॉलेज से घर आना, घर के आगे नहीं जाना. सो दिस इज अ बाउंड कि हमने इतने ही एरिया में काम करना है. तो ऐसे ही सीक्वेंस के ऊपर काम है कि सीक्वेंस ने बाउंड के अंदर अंदर काम करना है. बाउंडेड बिलो का मतलब नीचे से बाउंड किया गया है, इसके ऊपर जितनी मर्जी वैल्यू ले लो. बाउंडेड अबव का मतलब ऊपर से बाउंड कर दिया, उसके पीछे जितनी मर्जी वैल्यू ले लो. बाउंडेड का मतलब नीचे से भी बाउंड है, ऊपर से भी बाउंड है. इन दो वैल्यूज के बीच बीच में वो वैल्यू लेगी. वो अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है कि वो बाउंड ही नहीं है, जहाँ मर्जी -∞ से लेकर +∞ तक जो मर्जी वैल्यू ले. सो व्हाट आर द डेफिनेशंस? अ सीक्वेंस ए है, अ सीक्वेंस ए is said to be bounded below sequence, is said to be bounded below sequence if there exists small m belonging to R. This is the symbol of there exists. If there is a small m belonging to the real number such that an is greater than is equal to m for all n belonging to natural number, such that an is greater than is equal to m for all n belonging to natural number. वो कहता कि n कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर दो, सीक्वेंस के नंबर की वैल्यू हमेशा m के यहाँ तो इक्वल होगी या m से बड़ी होगी. मतलब m इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू an. मतलब an जो है वो m से हमेशा बड़ा रहेगा. So this is the bounded below sequence. m से कभी छोटी वैल्यू नहीं लेगा. Similarly bounded above. A sequence an is said to be bounded above sequence. सारी लाइन सेम है. Is bounded above sequence if there exists capital M belonging to real numbers such that an is less than is equal to capital M for all n belonging to natural. मतलब n को अब कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, an की वैल्यू सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा जो है वो m से क्या रहेगी? छोटी रहेगी. तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव सीक्वेंस. इससे m कैपिटल m से कभी भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रहेगी. बाउंडेड सीक्वेंस, इन दोनों को क्या करना? कंबाइन कर दो. A sequence an is said to be bounded sequence if there exists small m and capital M such that an lies between small m and capital M for all n belonging to नेचुरल नंबर. क्या मतलब है? n को जो मर्जी नेचुरल नंबर पुट कर दो, सीक्वेंस का नंबर हमेशा स्मॉल m से लेकर कैपिटल M के बीच बीच में वैल्यू देगा. इन दोनों के कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा. तो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस.
Now the definition is unbounded sequence. A sequence which is not bounded is called as unbounded sequence. A sequence simple सी बात है which is not bounded is called unbounded sequence. जो बाउंडेड नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम अनबाउंडेड, मतलब उसको रोकते हुए भी वो कभी भी वैल्यू अपनी लिमिट नहीं करेगी, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेती जाएगी, जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, उसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस. सो ऑल दिस डेफिनेशन आई होप यू हैव बीन क्लियर. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट थ्योरम. whole book is considered theorems only. So the first theorem is theorem number 1. A sequence AN is bounded if and only if there exists 0 less than k belonging to real numbers. मतलब k कोई पॉजिटिव नंबर है such that modulus AN is less than k for all n belonging to natural numbers. देखो जी मेरे को क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है a sequence AN is bounded if and only if there exists. कोई ना कोई k एग्जिस्ट करेगा बिलोंगिंग टू रियल नंबर. if and only if का मतलब है दोनों साइड से प्रूव करना है. अगर k एग्जिस्ट करता है तो मेरे को प्रूव करना है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मेरे को प्रूव करना है AN is bounded. और अगर AN बाउंडेड है तो मेरे को प्रूव करना है कि AN ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे. ठीक है, दोनों तरीके से जो हम करेंगे. सो प्रूफ देखो जी, let AN be a bounded sequence. मैंने मान लिया AN क्या है जी, एक बाउंडेड सीक्वेंस है. अगर AN बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने अभी भी लिखा कहती है therefore there exists small m and capital M such that small m is less than is equal to AN is less than is equal to capital M for all n belonging to natural number. इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए ना. This is the definition of bounded sequence. Now हमें क्या लेकर आना, ये k कंसिडर करना. So let k is equals to maximum of modulus m and capital modulus m, modulus of small m and capital modulus m. मैंने क्या मान लिया, जो मेरा k नंबर है वो क्या है, मैक्सिमम है, सब बड़ा है, इस छोटे m से भी बड़ा है और इस बड़े वाले m से भी क्या है, बड़ा है, इसके मॉडुलस से बड़ा है, मतलब नेगेटिव साइड में भी एग्जिस्ट करेगा, बड़े वाले साइड में भी एग्जिस्ट करेगा. k मैक्सिमम है तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ स्मॉल m इज लेस देन इज इक्वल टू k, मॉडुलस ऑफ कैपिटल M इज लेस देन इज इक्वल टू k. मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा. जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज. माइनस k इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस m, ये एज इट इज रहेगा मॉडुलस m इज लेस देन इज इक्वल टू k. क्लियर है? नाउ अब देखो जी, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ m, negative of any number is less than is equal to the number itself. Negative of a number is less than the number. And इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, m जो अपना सिंपल m नंबर है वो हमेशा अपने मॉडुलस से छोटा या उसके बराबर रहेगा. इट इज लेस देन इक्वल टू b. इसको इक्वेशन नंबर दे दो. अब देखो जी बात क्या करनी है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2. देखो जी क्या कह रहा है, जो माइनस k है वो स्मॉल m से क्या है, छोटा है. माइनस k इज लेस देन इज इक्वल टू स्मॉल m. स्मॉल m आगे किससे छोटा है, an से. an किससे छोटा है, कैपिटल M से. कैपिटल M किससे छोटा है, a से. अब an की वैल्यू माइनस k से लेकर पॉजिटिव k तक लाई कर रही है और इसके साथ कंडीशन थी फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल. अब an की वैल्यू देखो माइनस k से लेकर कैपिटल k तक आ रही है, तो मतलब माइनस k इज लेस देन इक्वल टू an इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल A फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स. Any number lies between the negative and positive of the one number implies modulus of an is less than equal to a. प्लस 1 का काम है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल. पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया. गिवन था जी an एक बाउंडेड सीक्वेंस है, प्रूव कर दिया मॉडुलस ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू. नाउ conversely
मैंने क्वेश्चन प्रूव करना था इफ एंड ओनली. कन्वर्सली लेट A and B any sequence such that k greater than 0 belonging to real numbers such that जैसे इंटरनल लिखो there exist 0 less than k belonging to real numbers such that modulus of an is less than is equal to k. अब फिर से वापस चलना शुरू कर दो. मॉडुलस खोलोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के लेस देन इज इक्वल टू an लेस देन इज इक्वल टू पॉजिटिव के. लेट माइनस के इज इक्वल टू स्मॉल m एंड कैपिटल के पॉजिटिव के इज इक्वल टू कैपिटल के. दिस इंप्लाइज माइनस m सॉरी लेस स्मॉल m लेस देन इज इक्वल टू an लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल्स. फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल्स. फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल्स. इसका मतलब क्या है? an लाई कर रहा है दो नंबर्स के बीच में. दिस इंप्लाइज an इज बाउंडेड सीक्वेंस. खत्म हो गया. तो ऐसे ही है सारी थ्योरम. सिंपल सी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी. बिना डेफिनेशन के पहला स्टेप भी नहीं आप चल सकते. यू हैव टू लर्न ऑल दीज. टू डेफिनेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड द लीस्ट अपर बाउंड. बड़े ध्यान से समझना है डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसको जीएलबी से भी डिनोट करते हैं और इन्फिमम से भी बोलते हैं, इन्फिमम आईएनएफ. और लीस्ट अपर बाउंड को एलयूबी से भी डिनोट करते हैं और इसको सुप्रीमम भी बोलते हैं, एसयूबी. नाउ डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. लेट ए एन बी एस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. मैंने ए एन को क्या मानना है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. देन एल बिलोंगिंग लोअर बाउंड निकालने तो मैंने एल मान लिया. एल बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी ऑफ ए एन इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. इफ फॉर इफ पहली कंडीशन है जी ए एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एल फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल. पहली चीज क्या है? ए एन जो है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस थी तो एल को क्या होना चाहिए इसकी लोअर बाउंड. एल क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन का जी लोअर बाउंड होनी चाहिए. लोअर बाउंड का मतलब जो उसको नीचे से रोक कर रखेगी. ए एन की वैल्यू कभी भी इससे छोटी नहीं जाएगी. और दूसरी कंडीशन है जी फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल्स. दिस इंप्लाइज am इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन. अब बात समझो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक सीक्वेंस है ये, मेरे को उसकी निकालनी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब सबसे बड़ी छोटी बाउंड. सबसे बड़ी और छोटी बाउंड. छोटी बाउंड का मतलब खुद लोअर बाउंड रख जाइए. तो एल जो भी एक नंबर है वो क्या है? ए एन से छोटा रहेगा हमेशा या इसके बराबर रहेगा. कभी भी सीक्वेंस का नंबर इससे छोटा नहीं होगा. अब वो कहता है कि अगर मैं छोटे से छोटा नंबर एप्सिलॉन भी अगर मैं एल में ऐड कर दूं तो सीक्वेंस का एक ना एक नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. ठीक है. जैसे सपोज एक मेरे पास सेट है क्लोज्ड सेट 3 to 5. अब इसकी लोअर बाउंड है 3, मतलब 3 से कोई भी छोटा नंबर नहीं है. मैंने बोला कि अगर मैंने 3 के अंदर छोटा सा नंबर भी ऐड कर दिया 3.01. 3 के अंदर मैंने ऐड कर दिया 3 + 0.1 तो ये नंबर आ गया जी 3.1. वो कहता है जैसे ही मैंने एल के अंदर छोटा सा नंबर ऐड किया ना तो इस सेट का एक नंबर जो है 3.01 वो इस सेट से छोटा हो जाएगा. तो 3 क्या होगी जो मेरी GLP ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इससे छोटा कोई भी नंबर मतलब सॉरी इससे बड़ा कोई भी नंबर उसकी लोअर बाउंड नहीं होगी. ये सबसे बड़ा नंबर है. जैसे इसमें कुछ ऐड किया देखो 3.1 तो लोअर बाउंड ही नहीं हुई ना, उससे छोटा नंबर आ गया सीक्वेंस का. ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. पहले लोअर बाउंड चाहिए फिर सबसे बड़ी होनी चाहिए. जैसे ही मैंने कुछ ऐड किया तो वो लोअर बाउंड ही नहीं. ऐसी सेम है लीस्ट अपर बाउंड. सबसे छोटी पर ऊपर से बाउंड करनी चाहिए. अपर है तो मैंने यू मान लिया. सेम सारी डेफिनेशन है. तो पहली कंडीशन होनी चाहिए जी ए एन इज लेस देन इज इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स. और दूसरी चीज है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exist m belonging to natural numbers such that am is less than u minus epsilon. am is greater than u minus. पहले तो an क्या होनी चाहिए जी? u क्या होनी चाहिए? अपर बाउंड. सीक्वेंस का कोई भी नंबर u से बड़ा नहीं होगा. अब कहता है जैसे ही मैंने u में से कुछ भी छोटा सा भी माइनस किया
तो सीक्वेंस का नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। सेम यही एग्जांपल 3 और 5, अपर बाउंड क्या है 5, अपर बाउंड क्या है, जैसे ही मैंने 5 में से कुछ भी माइनस किया 0.1 बचा क्या 4.9, तो कहता सीक्वेंस का एक नंबर होएगा 4.99 जो इस 4.9 से बड़ा हो जाएगा। सो इसलिए 5 मेरा क्या होगा कि लीस्ट सबसे छोटा है, इससे जैसे ही छोटा किया तो वो अपर बाउंड ही नहीं है, देखो ये अपर बाउंड ही नहीं है तो उससे छोटा होगा। सो दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट का मतलब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज हो रही है, बंद हो रही है, फैल नहीं रही है, बंद हो रही है। A sequence AN is said to be convergent to a point L belonging to the real number कब, if for given epsilon greater than 0 however small there exists M belonging to naturals such that AN minus L is less than epsilon for all n greater than 0। क्या कह रहा है, अगर एक मेरे पास सीक्वेंस है, इधर नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 n, कुछ देर बाद नंबर आ रहा है m, और इधर नंबर बड़े हैं a1 a2 an, और एक नंबर आ रहा है कोई l। वो कह रहा है कि भी जैसे जैसे n, या फिर इसकी ऐसे ले लो डेफिनेशन a1 a2 सो अप टू an जा रहा है, an जा रहा है, मैंने an को ऐसे लो, लेट सीक्वेंस ही ले लो, सीक्वेंस इक्वल टू 1 बाय n, a1 क्या आएगा 1, a2 क्या आएगा 1 बाय 2, a3 क्या आएगा 1 बाय 3। जैसे ही मैं बढ़ता गया a1000 क्या आएगा 1 बाय 1000, a1001 क्या आएगा 1 बाय 1001। इसका नंबर क्या आ रहा है 0.001, इसका क्या आ रहा है ये भी 0.001। वो कहता मेरे पास एक ऐसा m एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा m सच दैट उस m के बाद जब भी मैं सीक्वेंस को नंबर पुट करूंगा तो सभी का नंबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये भी इक्वलेंट टू 0 है, ये भी इक्वलेंट टू 0 है। जो इसके बाद a1002 आएगा 1 बाई 1002, वो भी क्या आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो एक सभी नंबर्स एक ही नंबर को अप्रोच करने चाहिए l को, तो मेरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है जी, समझ लगी। गिव विद एग्जांपल। आल्सो वी कैन राइट इट एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। जैसे जैसे n की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी, सीक्वेंस के सारे नंबर सेम एक ही नंबर के बराबर आते शुरू हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी थ्योरम। अब 2-3 थ्योरम्स करते हैं फिर आज के लेक्चर में। द नेक्स्ट थ्योरम इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट। थ्योरम नंबर 2, अ कांस्टेंट सीक्वेंस is convergent. Prove that a constant sequence is a convergent. Let an be a constant sequence. An be a constant sequence defined by an is equals to a for all n belonging to natural number। n को जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, कांस्टेंट का मतलब सेम वैल्यू रहेगी। मेरे को प्रूव करना है कि ये क्या है कन्वर्जेंट है। सो डेफिनेशन क्या बनी, लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल सच दैट, मैंने कंसीडर करके चलना है, जो मेरी डेफिनेशन थी ना मैंने उसको कंसीडर करना है। an माइनस a इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल्स टू a, that is a minus a, it is equal to 0 which is less than epsilon। ऊपर लिखा ना 0 is less than epsilon, so this implies an minus a is less than epsilon for all n belonging to natural number। मेरे को तो कोई m भी नहीं फाइंड आउट करना पड़ा, सीधा ही आ गया n belonging to natural number, ये हमेशा epsilon से क्या होएगा छोटा होएगा। this implies sequence an is convergent। Theorem is a convergent sequence is bounded. A convergent sequence sorry, a convergent sequence is bounded। We have to prove a convergent sequence is bounded। So proof देखो ये इसका बड़ा आसान सा proof है। Let an be a convergent सीक्वेंस। मैंने मान लिया an क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर an कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो डेफिनेटली लगा दो। देयरफॉर
for given epsilon greater than 0 however small there exists m belonging to natural number such that mod of an minus, पहले मान लो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू एल, किसको कन्वर्ज करता है वो तो मानना पड़ेगा ना, कन्वर्जेस टू एल, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। देखो ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, डेफिनेशन लगा दी, इस मॉडुलस को ओपन करो, माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एल को ऐड कर दो, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू। देखो जी बाउंडेड मैंने प्रूव करना है, ए एन इज बाउंडेड, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या करती थी, ए एन जो नंबर है वो किसी एक नंबर से बड़ा और एक नंबर से छोटा नहीं, आ गया, बट वहाँ पर कंडीशन लिखी होती थी फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं, यहाँ पर कंडीशन आ रही है एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम से बड़े के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो एम से छोटे के लिए क्या करेगा वो प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेंगे, लेट स्मॉल के इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन, मैं एल माइनस एप्सिलॉन की बात करता हूँ, अगर एल माइनस एप्सिलॉन की बात करता हूँ मेरे को इससे छोटा नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने स्मॉल के ऊपर मान लिया मिनिमम ऑफ दिस। अब एल माइनस एप्सिलॉन लिखने का मतलब एम से बाद वाले सभी के लिए काम हो गया, पर एम से पहले वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, के इज मिनिमम ऑफ, एम से छोटा कौन सा नंबर है, एन बिलोंगिंग नेचुरल करते हैं ना, a1 a2 a3 so on to an माइनस। अब देखो जी सारी टर्म्स कंसीडर होगी, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, a3 भी आ गया, am माइनस 1 भी आ गया, am के ऊपर तो वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन है, am प्लस 1 के लिए वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन है, सभी के लिए वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन है, तो इन सभी से छोटा कौन सा नंबर है k, और ऐसे ही मान लेंगे कैपिटल K व्हिच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ l प्लस एप्सिलॉन a1 a2 a3 so on to an माइनस 1, सेम वही कहानी। अब देखो k सभी से छोटा है और ये k सभी से क्या है, बड़ा है, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल k लेस देन a n इज लेस देन कैपिटल K फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, दिस इज a n इज बाउंडेड सीक्वेंस, क्लियर, आसान सी चीज। नेक्स्ट वन मोर थ्योरम, theorem is theorem number 4, if a sequence an is convergent, if a sequence an is convergent then it converges to unique limit, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो क्या करेगी, एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। चलो प्रूफ देखो, ये बड़ा आसान प्रूफ है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लेट ए एंड बी आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मैंने मान लिया क्या है, कन्वर्जेंट है, प्रूव करना है कि वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। मैं मान लेता हूँ, लेट अस suppose an converges to L1 and an converges to L2, मैंने मान लिया an L1 को भी कन्वर्ज करती है, an L2 को भी कन्वर्ज करती है, therefore for given epsilon greater than 0 however small there exists m1 m2, दो लिमिट्स हैं तो दो नंबर मान लिए, m1 m2 belonging to natural numbers such that mod of an minus l1 is less than epsilon by 2 and mod of an minus l2 is less than epsilon by 2 for all n greater than is equal to m1 and for all n greater than is equal to m। मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है l1 is equal to l। तो देखो जी उसके लिए क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमने पिछली थ्योरम में किया, बड़ा आसान सा स्टेप, लेट m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। इसका क्या मतलब, अब देखो जी इक्वेशन थ्योरम में कह रही है कि अगर an कन्वर्ज कर रहा है इस नंबर को, तो कर रहा है कि वो कहता है जब n 100 के ऊपर चला जाएगा ना तो वो l1 को कन्वर्ज करेगा, अगर n
200 के ऊपर चला जाएगा तो वो L2 को कन्वर्ज करेगा, यही मतलब है ना इसमें। मैंने मान लिया M विच इज मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2, मतलब M को मैंने मान लिया 300, M1 मेरा 100 है, M2 मेरा 200 है, M को मैंने मान लिया 300 विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 100 एंड 200। ये सिर्फ समझाने की बात है, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने की बात है। वो कह रहा अगर 100 से बड़ा था तो L1 के लिए कंसिडर कर रहे थे, अगर 200 से बड़ा था तो L2 के लिए कंसिडर कर रहे थे। वो कहता 300 के लिए क्या करोगे, 300 को दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m mod of an माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओनली दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो therefore m satisfy for both equation 1 and 2, equation 1 and equation 2। मेरे को प्रूव करना है L1 माइनस L2, ओ सॉरी L1 इज इक्वल टू L2। कंसीडर मॉडुलस ऑफ L1 माइनस L2। क्या करो, इसमें an सब्ट्रैक्ट कर दो, an ऐड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करो, L1 माइनस an को अलग कर लो प्लस an माइनस L2 को अलग कर लो। मोड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। an माइनस L1 प्लस an माइनस L2। इसका क्या मतलब है, an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। L1 माइनस L2, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज एप्सिलॉन। सो आ क्या गया मेरे पास, तुरंत खत्म होगी, बस एक स्टेप रहेगा। क्या करती है थ्योरम, दिस इंप्लाइज, शुरू कहाँ से हुए थे, मोड ऑफ L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जैसे ही n m से बड़ा होएगा L1 माइनस L2 एप्सिलॉन से छोटे होंगे। अगर L1 माइनस L2 एप्सिलॉन से छोटे हो गए, वेयर एप्सिलॉन is very small and hence negligible, उसको मान लो क्या है, खत्म होगा 0। तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0, L1 इज इक्वल, दिस implies if a sequence an is convergent, it converges to uniquely। समय लगी की बात ये ना, तो आसान सी इतनी सी थ्योरम थी, 4 थ्योरम तक कर लिया, डेफिनेशंस कर ली, बहुत आपके लिए एक दिन का काम, ये करो फिर बाकी कर लो।